politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. Pegasus पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? राहुल का विदेश में संबोधन, देश के मुद्दों पर आक्रमण, लोकतंत्र पर हो रहे हैं हमले, आलोचकों को धमकाया जाता है। पेगासस से मेरे फोन की हुई जासूसी, मोदी देश को कर रहे हैं बर्बाद। देश में एक बार फिर पेगासस को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी इन दिनों लंदन के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने भारत में संस्थाओं के नियंत्रण में होने की बात कही। साथ ही उन्होंने अपने फोन की जासूसी किए जाने का आरोप भी लगाया। देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। मीडिया, विपक्ष, अल्पसंख्यक और आदिवासी सभी निशाने पर हैं। आइए सुनवाते हैं आपको कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। Speak a little bit about India, about what is going on in India, and that's the Bharat Jodo bit. And then I would talk about two divergent perspectives on the planet, the American view of things, the Chinese view of things, and how those two are playing out. And then I'd conclude by placing some ideas on the table about how we can think about these two divergent forces. The central thread is about listening, and it's about listening at the individual level, but also listening politically at scale. So not just one person, but listening to millions and millions of people and understanding how they're feeling and how they're responding. Okay? And then also listening to different cultures which you're not maybe used to or I'm not used to, and trying to get a sense of how they're seeing the world, and trying to piece together where they're coming from. So the broad idea is one of listening. Different cultures listen differently. There's a very specific way in which the Indian culture listens, and so I'll be talking more about that. I see a friend of mine, a Sikh friend of mine. You'll sort of get a sense of what I'm talking about, and it's also about what is going on at the international level and the risks that are potentially in front of us. Okay, so we can start with the Bharat Jodo. Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right? Can we do the next slide? So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases. But that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people. हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ भी की। राहुल से जब मोदी सरकार की अच्छी नीतियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उज्ज्वला योजना और जनधन योजना का जिक्र किया। राहुल गांधी के बयान पर सियासत भी गर्मा गई।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल किया और जमकर प्रहार किया, जिसके बाद बीजेपी ने भी इसका करारा जवाब दिया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल विदेशी धरती पर देश को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति है। पीएम को देश की जनता का समर्थन मिला है। दुनिया में पीएम मोदी के काम की सराहना हो रही है। राहुल इटली के पीएम को तो सुन लेते। पैगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की यह साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज के बिजनेस स्कूल में 21वीं सदी में सुनना सीखने की कला विषय पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए नई सोच की जरूरत की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि इसे किसी पर थोपा ना जाए। हम ऐसी दुनिया बनते हुए नहीं देख सकते जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी ना हो। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देश के अंदर ही होनी चाहिए। आप नेता विपक्ष हैं, आपको विदेशी मंच पर सकारात्मक बातें भी करनी चाहिए अपने देश के बारे में। ये आपका व्यक्तित्व दर्शाता है कि आप अपने देश को विदेशी पटल पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर में सवाल यही कि राहुल गांधी विदेशी पटल पर जाकर बार बार देश को बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हैं? आरोप प्रत्यारोप राजनीति अपनी जगह है और देश की अखंडता एकता अपनी जगह। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।